Hello students, good evening. This video is made for revision purpose, right? It's a kind of revision or tutorial session we can say. So here I'll read some questions and explain the answer, right? First question, describe the internal structure of words using the notions of root, stem and base. See, this video is little long because I would try to cover all the different questions and I would explain in English and as well as in Hindi somewhere. So question is, describe the internal structure of words. So the moment you read internal structure of words, you should understand that we are talking about morphology, right? Morphology, study of morpheme, right? So here question is related to study of morpheme. Using the notion of root, stem and base. What's the root, right? And stem and base, the difference. Because for this is use for the words. Okay, so let us see. The internal structure of words is analyzed in morphology. I told you that we are going to discuss morphology for this question. This question is related to morphology. By breaking them down into basic form meaning units, right? So that is words or a word should be broken, right? Broken down into basic form meaning. That's a basic unit of a word. जब हम किसी शब्द को तोड़ते हैं तो उसको इसमें वर्ड के एक एक पार्ट की स्टडी होती है विच इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, है ना. मॉर्फी मतलब वर्ड्स. तो व्हेन वी कट द वर्ड्स so then we do study of different parts of word. So that's we have to take out the basic unit of the word. So the key notions of this analysis are the root, base and stem, right? So please take care the difference we are going to study. A difference among root, base and stem. क्या difference है? Root is the core of a word, right? That's the core of a word carrying the main lexical meaning. बहुत important है. Root मतलब that's a core of a word and which carries the main lexical meaning, right? Literary meaning. It is the part that remains when all affixes, prefixes, suffixes and infixes, right? Prefix means pehle, suffix pre means before, suffix after, infix middle are removed, right? It is typically a free morpheme, means root or free morpheme is the core of a word. Root or free morpheme is same and that is the core of a word, can stand alone, important, as a word, but can be bound, right? A word must have exactly one root. एक वर्ड में एक रूट तो होगी ही होगी. Example, unreadable, right? So example is unreadable. So here root is read. ये prefix है. This is suffix. This is also prefix. But that is read is, that's a free morpheme. This is only the free morpheme or this is root, right? So that's a root of the year. That's the root of the word.
right? Now, so this is prefix, infix, suffix, right? Now moving to next, base. Any form, what is base? This is base. Any form to which an affix is attached, right? Any affix is prefix or suffix or infix. This is the broadest term. A base can be a root, a stem, or a complete word. Means base can be a root. Means sometimes base and root are same. A stem, base can be stem, or base can be complete word. Means base means what? Base means maybe root, it may be stem, it may be a complete word, is called base. Okay, example, base root and base stem. Please understand, when base becomes root and when it becomes stem. So root is in reading, right? Base is read. In the word reading, base is read. And in unreadableness, the base for suffix ness is readable, which is a stem. क्या बोल रहा है वो कि बेस, इसमें स्टेम, बेस क्या है, इसमें एक वर्ड है दैट इज अनरीडेबलनेस, है ना? तो इसमें बेस फॉर द सफिक्स, अब इसमें सफिक्स ये भी है और ये भी है ना? नेस, राइट? तो ये क्या हो गया? इज रीडेबल, है ना? मतलब रीडेबल पूरा पढ़ रहे हो अगर आप, तो नेस क्या बन गया इसमें? ये बन गया दैट इज द सफिक्स एंड विच इज स्टेम. तो वो उसका एक स्टेम है. मतलब रूट जो बेस है, यहाँ पे बेस है, इन दिस वर्ड बेस इज रीड, है ना? और यहाँ रीडेबल तो है ही अपने आप में नेस. तो रीडेबल नेस, तो ये जो नेस है ये रीडेबल जो है ये इसका स्टेम है. मतलब रूट ये है, राइट? ये रूट है और ये स्टेम है. तो रूट जो है वो रीडिंग में रीड रूट है, और अनरीडेबलनेस जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो इसका स्टेम कहते हैं उसको. ठीक है, नेस इज रीडेबल विच इज स्टेम. ओके, अब स्टेम क्या है? तो द पार्ट ऑफ अ वर्ड टू विच ओनली inflectional affixes, those that do not change the word's part of speech, जो वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज नहीं करते हैं, लाइक प्लूरल और पास्ट टेंस, कैन बी एडेड, राइट? तो स्टेम मस्ट बी अ यूनिट दैट कैन बी असाइंड अ पार्ट ऑफ स्पीच. तो स्टेम क्या है? स्टेम एक यूनिट है जो कैन बी assigned as a part of speech. It often consists of the root plus one or more derivational affixes, those that can change, right? That can change the part of speech, like able, right? Example, readableness. अब readable is the stem to which inflectional ness has been attached or added. Okay, so यहाँ पे क्या है?
readable is a word. Suppose this is readable, right? I'm writing it again. Readable, right? So that is readable, and one ness or branch, that is stem, that is ness, right? So readable, ness. Ness is the stem and readable is the root or base, right? In summary, a root is the ultimate core, right? Root is the ultimate core. Stem is the form ready for inflectional, and a base is only, so stem is inflectional means walk, walked, room, rooms. So S is inflectional, and a base is any form an affix attaches to, right? Every root is a base and every stem is a base, but a base is only a stem. हर रूट जो है वो बेस है, पर हर स्टेम भी बेस है, लेकिन but a base is only stem if it is the unit to which an inflectional affix is added. So no, here I'm not going to uh, going to read the, right, to express detailed study of root, base and stem. You just have to understand that's a root is base word, that's a root and base, and extra part is called stem. मोटे तौर पे अभी इतना ही समझो, है ना? जिसका बेसिक मीनिंग है उसके आगे या पीछे अफिक्सेस, प्रीफिक्सेस, जो भी अफिक्सेस लगे हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स और इनफिक्स, तो प्रीफिक्स और सफिक्स में ये उसके रूट है, स्टेम है, लेकिन बेस जो है वो है रूट. अभी मोटे तौर पे इतना ही समझो. चलो, नंबर 2, एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबल. ये भी हमने क्लास में पढ़ा है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबल, एंड डिस्कस द फंक्शंस ऑफ ऑनसेट, न्यूक्लियस एंड कोडा with suitable linguistic example. Internal structure of a syllable, सिग्मा, है ना, उसको कहते हैं सिग्मा, is typically divided into two main parts, onset and rhyme. The rhyme is further divided into nucleus and coda. Right? How? See, before proceeding, I tell you that this is the structure of syllable. Syllable means here nucleus, right? Nucleus means that's a vowel, and all these C are this before vowel. This is called onset, and after vowel other C's are called coda, है ना. मतलब न्यूक्लियस बीच में होता है किसी भी सिलेबल में, ये एक सिलेबल का स्ट्रक्चर है, तो उसमें न्यूक्लियस मतलब वॉवल बीच में होता है, वॉवल के इस तरफ एक कॉन्सोनेंट या जितने भी कॉन्सोनेंट है उनको ऑनसेट कहते हैं, इस तरफ राइट हैंड साइड में एक 1 कॉन्सोनेंट और 2 कॉन्सोनेंट उनको कोडा कहते हैं, और इन दोनों को मिलाकर, कोडा को और न्यूक्लियस को मिलाकर राइम कहते हैं. राइम, वो यही बता रहा है कि इसको राइम कहते हैं, है ना. तो द राइम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द न्यूक्लियस एंड द कोडा. मैंने वही बात अभी आपको समझाई. अब ऑनसेट क्या है? फंक्शन कंसिस्ट ऑफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स. ऑनसेट का मतलब ही कॉन्सोनेंट होता है ना. ऑनसेट का मतलब कॉन्सोनेंट दैट अपीयर बिफोर द न्यूक्लियस. ये भी आपको पता है कि ये न्यूक्लियस के पहले वाले कितने भी कॉन्सोनेंट. इट इज़ ऑप्शनल इन अ सिलेबस, सिलेबल स्ट्रक्चर.
कोई ज़रूरी नहीं है कि हर सिलेबल कॉन्सोनेंट से ही स्टार्ट हो, कभी होता है कभी नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रीट, है ना। तो अब स्ट्रीट में सिग्मा, स्ट्रीट, राइट। सो द ऑनसेट इज 3, इज ट्री, है ना, ये है। और ट्रीट, स्ट्रीट, स्ट्रीट में ये जो है ये वॉवल है, न्यूक्लियस है, वॉवल या इसी को न्यूक्लियस कहते हैं, है ना। तो ये होता है, इसको इसमें 1 2 3 तीनों क्या है, इसमें ऑनसेट है। ये स्ट्रीट, STR, तीनों STR, है ना। दूसरा है राइम। राइम क्या है, राइम, अरे सॉरी, दूसरा है राइम। राइम है द सेंट्रल एंड फाइनल पोर्शन ऑफ न्यूक्लियस, central and final portion of nucleus. It is obligatory and consists of nucleus and the coda. What is obligatory? Consists of the nucleus and coda. मतलब न्यूक्लियस और कोडा का होना जरूरी है, उसी से मिलकर बनता है राइम, ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, द ऑब्लिगेटरी सेंट्रल एलिमेंट ऑफ सिलेबल, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्लिगेटरी सेंट्रल एलिमेंट ऑफ सिलेबल विच कैरीज द प्राइमरी वोकैलिक साउंड। इसी से पूरा साउंड बनता है। आप कभी कोई भाषा को सुनना तो यू विल नोटिस दैट इट्स ऑल अबाउट वॉयल साउंड विच वी लिसन, है ना। वॉवल साउंड ही है जो प्राइमरी वोकैलिक साउंड है, मात्राओं को ही हम सुनते हैं। इन इंग्लिश दिस इज यूजुअली अ वॉवल और समटाइम्स अ सिलेबिक कॉन्सोनेंट। वॉवल नहीं है तो सिलेबिक कॉन्सोनेंट है, जैसे बटन। अब अगर मैं लिखती हूँ बटन, है ना, ये लिखा है बटन, इसका फोनेटिक ट्रांसफर, तो आपने यू जस्ट हैव नोटिस दैट देयर इज नो गैप इन टन, लिटिल, टिल, जरा सा भी गैप नहीं है टी और एल के बीच में। इसमें भी देयर इज नॉट अ लाइक स्मॉल नैनो स्पेस फॉर बिटवीन टी एंड एन, एक साथ ही है टी एंड एन, तो उसको कहते हैं सिलेबिक कॉन्सोनेंट, है ना। वो सिलेबिक यूनिट जैसा काम करता है। इट इज़ द मोस्ट सोनोरस पार्ट ऑफ द सिलेबस। ये जो पार्ट है ये एक तरह का मिक्स पार्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल है लिंग्विस्टिक एग्जाम्पल, स्ट्रीट अभी हमने देखा, है ना। तो इसमें हमने देखा कि लॉन्ग ई, एक्चुअली ये ऐसा लिखा है, ये अगर आप इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करोगे तो ये वाला है स्ट्रीट। तो अब इसमें ये क्या हुआ, इसमें ये हो गया CCC। तो इस CCC को क्या कहेंगे हम, ऑनसेट कहेंगे, है ना। और इसमें वॉवल या न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस है I, और T क्या है, कोडा है, ये C इसके बाद आ रहा है, ये है कोडा। क्या कह रहा है वो, कंसिस्ट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट्स दैट फॉलो द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस को फॉलो करता है। इट इज़ ऑप्शनल इन अ सिलेबल स्ट्रक्चर, कोई ज़रूरी नहीं कि सब में कोडा या ऑनसेट हो। एग्जाम्पल इन द वर्ड स्ट्रीट, अभी हमने देखा, है ना। तो ये तो सिग्मा है, सिग्मा मतलब ऑनसेट, है ना। द कोडा इज T, है ना। तो स्ट्रीट सिग्मा है और कोडा है T, ठीक है। सिलेबल सिग्मा, ओके। अब एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं वो, कैट, गो, आई, ये सिलेबल देखो, कैट, गो, आई, ये ओपन है ना। तो कैट में ये है कैट, तो इस कैट में ये ऑनसेट
ये न्यूक्लियस, ये कोडा, यही बता रहे वो, ऑनसेट न्यूक्लियस कोडा, है ना। फिर गो में ये गो, ठीक है, तो ये अब इसका ट्रांसक्रिप्शन कैसे हुआ, गो, है ना। तो ये तो हो गया कोडा, ऑनसेट, ऑनसेट सॉरी, और ये हो गया न्यूक्लियस, ये ऑनसेट और न्यूक्लियस। आई में सिर्फ न्यूक्लियस है क्योंकि आई का साउंड, चाहे ये आई हो या ये आई हो, साउंड क्या है, आई, और ये आई क्या है, ये सिर्फ एक न्यूक्लियस है ना। तो वही बता रहा है वो। तो ऑनसेट ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया, न्यूक्लियस है ना, द सेम वी आर टॉकिंग, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ फनीम्स एंड एलोफोन्स। इसमें मैं अभी सिर्फ 4 कर रही हूँ, फिर बाकी भी बताऊंगी। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ फनीम एंड एलोफोन्स, है ना। तो फनीम और एलोफोन्स क्या है, तो ये है, करेंगे हाउ डू मिनिमल पेयर्स, राइट, एंड कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग फनीम्स इन अ लैंग्वेज। तो मिनिमल पेयर से हम फनीम्स को कैसे रिकग्नाइज करेंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो फनीम्स एंड एलोफोन्स, फनीम हमने कई बार क्लास में पढ़ा कि फनीम इज़ द स्मॉलेस्ट मीनिंग डिस्टिंग्विशिंग साउंड, है ना। मीनिंग डिस्टिंग्विशन मतलब वो मीनिंग को बदल देता है, ऐसा साउंड को फनीम कहते हैं। साउंड यूनिट इन अ लैंग्वेज, इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मेंटल एंड रिप्रेजेंटेड इन स्लैश। ये भी हमें पता है कि ये एब्स्ट्रैक्ट मेंटल यूनिट है। एक्चुअली ऐसा कुछ हमको बताया है कि भाई ये साइन को बी कहते हैं, तो हम बी ही कहने लगे, तो वो इसीलिए कह रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट मेंटल यूनिट है। मेंटल यूनिट हमारे दिमाग में वो पिक्चर हमने बिठा दी। रिप्रेजेंटेड इन अ स्लैश, जिसको ये ऐसे स्लैश में टी के इसके अंदर टी है ना, रिप्रेजेंट करते हैं। फिर चेंजिंग वन फनीम फॉर अनदर क्रिएट्स अ न्यू वर्ड। जैसे कि अगर एक फनीम आपने चेंज कर दी तो क्या बन गया, पिन, है ना, चिन, क्योंकि च तो यही है, एक ही है, चिन, है ना। फिर किन, फिर बिन, है ना। तो एक एक से कितना सब कुछ चेंज हो जाता है, मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो क्रिएट न्यू वर्ड्स, वो यही कह रहा है कि क्रिएट अ न्यू वर्ड विद अ डिफरेंट मीनिंग, है उसका मीनिंग भी। एग्जाम्पल है in English, P, B are separate phoneme because they distinguish the word pet or bed। तो एक P और B बदलने से, है ना। अब एलोफोन्स क्या है, तो एन एलोफोन इज अ प्रेडिक्टेबल नॉन मीनिंग डिस्टिंग्विशिंग phonetic realization pronunciation of a single phoneme। ये क्या है, बड़ा लंबा सा उन्होंने बता दिया कि नॉन मीनिंग डिस्टिंग्विशिंग मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं है, कि जैसे फनीम में एक वर्ड चेंज हुआ, एक फनीम चेंज हुआ तो मीनिंग, वो इसीलिए कह रहा है कि नॉन मीनिंग मतलब मीनिंग चेंज नहीं होता एलोफोन से। डिस्टिंग्विशिंग फोनेटिक रियलाइजेशन, लेकिन हम उसको अलग अलग रियलाइज़ करते हैं, बताती हूँ मैं कैसे। ऑफ अ सिंगल फनीम मतलब वो वैरायटी सिंगल फनीम के ही वेरिएंट्स है, कई तरह से एक ही फनीम पी के कई वेरिएंट्स हैं। कैसे, एलोफोन्स आर रिप्रेजेंटेड इन स्क्वायर ब्रैकेट। एलोफोन्स किस में आते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में, इनको एलोफोन्स कहते हैं, है ना। अब एग्जाम्पल है, द फनीम टी इन इंग्लिश हैज़ एलोफोन्स लाइक एस्पिरेटेड, है ना, एस्पिरेटेड, ये एस्पिरेटेड, जैसे टॉप, तो अगर शुरू में है टॉप, है ना, तो आप जब इसको मिरर में या सोच के बोलना टॉप, तो आपकी जो टंग है, टिप ऑफ टंग टॉप
है ना, टीयर, राइट, टंग। तो ये एक फिक्स पोजीशन है। टर्न होती है, ट्विस्ट, हमारी टंग जो है वो राउंड हो जाती है, और राउंड होके, और ये जो कोरस पार्ट है, हार्ट पैलेट, उसको टच करती है, तब ट वाले शुरू के ट, बिगनिंग ट वाले वर्ड्स बनते हैं ना, टॉप, टफ, राइट, टाउन, टिप। तो एक तो ये हो गया एस्पिरेशनल, क्योंकि इससे ह का या एक एयर बर्स्ट होती है, सारे टी जो बिगनिंग वाले। एंड द अनएस्पिरेटेड टी, अनएस्पिरेटेड, स्टॉप। अब यहाँ स्टॉप, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा टिप ऑफ टंग का फिक्स हो गई जाके लोअर टीथ रिज में, और फिर फ्लैट हो गई थोड़ी, स्टॉप, है ना। आ, और बताओ ऐसे, स्टॉप, ईटेबल, तो वही हो गई ईटेबल, है ना, ईटेबल, ईटेबल। और सिटिंग। तो इन सब में जो वो है, ये जो है अनएस्पिरेटेड साउंड निकलता है। आप इतना डिटेल नहीं, आपको सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि इसको कहते हैं प्राइमरी पोजीशंस को बोलते हैं, प्राइमरी पोजीशन, है ना, फिर मिडिल और फाइनल बोलते हैं, है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल है टॉप, राइट, फिर है टंग, राइट, टीथ। इसमें सब में टी जो है वो बिगनिंग में आ रहा है, टी टी टी, है ना। तो ये प्राइमरी हो गया। अब मिडिल में क्या है, मिडिल में है सिटिंग, है ना, फिर ईचिंग, है ना, ईचिंग। तो ये नहीं, ये तो बीच में आ गया, फिर भी हाँ ये भी एग्जाम्पल है। फिर कैटलॉग, कैटलॉग, है ना। तो ये जो बीच में टी आता है इसको मिडिल टी कहते हैं। और फाइनल टी कैसा, सिट, सीट, अबाउट। तो इसमें ये फाइनल टी है, ऐसा। तो इन्हीं की पोजीशन हर बार मुंह में चेंज हो रही है, तो साउंड चेंज हो रहा है, जिसको एलोफोन्स कहते हैं। एलोफोन ब्रैकेट में डिनोट करते हैं, है ना। अब है आइडेंटिफाई फनीम्स, है ना। फनीम्स को आइडेंटिफाई करने वाला मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, थोड़ा सा बिजी हूँ, तो इतना मैंने अभी आपको यहाँ तक समझाया है ना। नाउ आई एम गोइंग टू मेक the video on identifying the phonemes in next video, right? Thank you so much. Bye bye. God bless you.